What's your monthly in hand pay? मंथली इन हैंड इज़ अराउंड 30,000. उसमें मेरा एक्सपेंस हो जाता था 14,000 पर मंथ. 14,000 पर मंथ. Yeah. जो आपका 50% 40% आपका पहले जा रहा था सिर्फ फ्यूल और ट्रैवल में. I bought a house in Pune which is around 34 lakhs. So I took a loan of around 20 and a half. आपके केस में 30 साल का टेन्योर है, तो इवन विदाउट आस्किंग यू द इंटरेस्ट रेट्स आई कैन टेल यू कि आप एटलीस्ट ट्रिपल तो अमाउंट पे करोगे ही करोगे. ये घर आपने क्यों लिया? मतलब आप 24 साल के ही हो, 2 साल से आप काम कर रहे हो. Actually, हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस. आज मैं नवी मुंबई में हूँ, मेरे साथ है अनिरुद्ध. ये एक इंजीनियर है, ही करंटली वर्क्स एट एन एमएनसी एंड टुडे वी विल ट्राई टू फिक्स हिज फाइनेंस. अनिरुद्ध, वेलकम टू द शो. थैंक यू. बताओ आप क्या करते हो, कहाँ से हो, कितने टाइम से मुंबई में हो? मैं मुंबई में अराउंड 20 years से हूँ. My role is I am a system engineer. I am a ClickSense developer and also seeing the cyber security part of that. और आप इस कंपनी में कितने टाइम से काम कर रहे हो? Last 2 years. ठीक है. सो एट द एज ऑफ 22 व्हेन यू जॉइन दिस कंपनी, व्हाट वाज द टोटल कॉम्पनसेशन ऑफर्ड? Yeah, it was 3.36 lakhs. Currently, right now, I'm at 4.2. व्हाट्स योर मंथली इन हैंड पे? Monthly in hand is around 30,000. 30,000 रुपीज. सो ये तो चीज़ है, बट यू ऑल्सो सेड राइट दैट यू आर अपस्किलिंग योरसेल्फ. Yes. तो आप अभी क्या कर रहे हो ये बताओ. Currently, I'm doing a certification called as CEH, which is Certified Ethical Hacker. That our company sponsors. So मेरा aim है कि वो certification करना है इस quarter. And what kind of a pay jump can you expect after being a certified ethical hacker? I'm expecting around 100%. Which means that you will go from 4 LPA to 8 LPA to 10, yeah. which is a significant jump. I also feel that upskilling yourself is the most important thing in 2024 to be relevant, or else you will be obsolete and your pay will not grow at a faster pace. There are many upskilling platforms in the country. One such upskilling platform is Creo. Have you explored Creo before? No. Creo is an experiential upskilling and learning platform that helps people in the world of tech. इनका जो करिकुलम है ना, वो नॉर्मल वीडियोस, बुक्स और लेक्चर्स में लिमिटेड नहीं है. They have built a hands-on curriculum so that whatever the students are taught, they can apply it in the real world from day one. They follow a project-based curriculum based on real-life scenario, and Creo is recognized by the National Skill Development Corporation, an entity of the Government of India. अभी तक Creo ने 1300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस किया है, and they want to continue this momentum and want to have double the impact in 2024. That's why they are coming up with a scholarship program. इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में you can get up to 70,000 rupees का स्कॉलरशिप provided by them. स्कॉलरशिप का नाम है Creo Mission Scholarship and this is valid till 31st of January 2024. Creo ने जो प्लेसमेंट्स किए थे 1300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के, उनमें से बहुत सारे लोग नॉन IT बैकग्राउंड्स के भी है, and they were placed in 750 different companies. Many people from the IT or the non-IT background were able to get opportunities in companies like PhonePe, Amazon, Cisco, Mercedes-Benz, Infosys, Sony, etc. after upskilling themselves via Creo. So if you are planning to upskill and want to move in the tech industry, check out Creo. The link is in description. 30,000 rupees, ठीक है. इसके अलावा कोई और perks है आपके इस कंपनी में? Perks, health insurance है of around 12 lakhs. Wow. तो ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देती है, और जहाँ तक मुझे पता है ये वाली कंपनी का जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, बिकॉज इसमें OPD भी है. इज दैट ट्रू? या ट्रू. बहुत अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस. जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में ये होता है कि हॉस्पिटलाइज होते हो तभी आप क्लेम कर सकते हो, बट अ लॉट ऑफ these big established companies also offer like outpatient claims, which is amazing. Who all are covered in this health insurance? Only me. Only you. ठीक है. आपने फैमिली को ऑप्ट इन नहीं किया है? एक्चुअली डैड को ऑलरेडी इंश्योरेंस है. ओके. तो ये तो हो गई आपकी इनकम की बात, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपेंसेस. Currently you are living with your parents, so I'm guessing that you don't have to pay a rent or anything, right? Yes, right. So your housing expenses are Zero. nothing. Zero. Next is travel. How often do you have to go to the office?
I have to go all 5 days. So right now I'm going through office bus, which is around 1,000 rupees A month. a month. Okay. You said right now you are going via an office bus. उसके पहले कैसे जाते थे? उससे पहले मैं ओन कार से जाता था, ठीक है. तो उसमें मेरा एक्सपेंस हो जाता था 14,000 पर मंथ. 14,000 per month. या ओके. एंड ये कब की बात है? कितने टाइम से आपने चेंज करना शुरू किया है? वर्क फ्रॉम ऑफिस मेरा लास्ट 3 मंथ से चालू है, तो लास्ट 2 मंथ्स आई वॉज डूइंग लाइक दैट. ओके. और इस महीने आपने ये किया. सो दैट्स अ वेरी बिग यू नो चेंज, वेरी बिग चेंज. आपका 50% 40% आपका पहले जा रहा था सिर्फ फ्यूल और ट्रैवल में, अब वो सीधा 1,000 रुपये में आ गया है. राइट. सो अमेजिंग. बहुत सेल्फ करेक्शन इज द की गाइज. दिस गाय सेल्फ करेक्टेड एंड रिड्यूस्ड हिज ट्रैवल एक्सपेंसेस सिग्निफिकेंटली. नेक्स्ट इज फूड. डू यू हैव टू contribute for the food and grocery expenses? No. Nothing. So do you have to contribute towards anything? No. Household expenses? No, right? And it makes sense, right? Since your father is already still working, he is taking care of all the expenses. Right? ठीक है. तो आपने बोला कि 1,000 rupees towards travel. उसके अलावा आपके क्या खर्चे हैं? Actually, I bought a house in Pune, which is around 34 lakhs. So I took a loan of around 20 and a half. And the down payment, I was doing mutual funds earlier, and वो निकाल के मैंने down payment किया है. Okay. तो उसका EMI अराउंड 15 एंड हाफ जाता है अभी. ये घर आपने क्यों लिया? मतलब आप 24 साल के ही हो, 2 साल से आप काम कर रहे हो. एक्चुअली माई फ्रेंड्स लिव इन पुणे एंड आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी देयर. मार्केट वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आई थॉट ऑफ जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड बॉट एन हाउस देयर. ओके. अभी वो जो आपने कितना टाइम पहले खरीदा है घर? मैंने देखना 1 ईयर पहले चालू किया था, और रजिस्ट्रेशन मेरा अराउंड जून जुलाई में हुआ है. जून जुलाई 2023. राइट. 34 lakhs यू सेड. आपने लोन लिया 22 lakhs. 20 एंड हाफ. और बाकी 14 lakhs आपने? वो कंस्ट्रक्शन वाइज होता है, स्लैब वाइज होता है. तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी बना नहीं है, तो वो 10 अभी देना बाकी है. ठीक है. 10 अभी देना बाकी है. उसके लिए भी आई एम गेसिंग आपको लोन लेना पड़ेगा. आर यू प्लानिंग टू फंड द एंटायर हाउस बाय योरसेल्फ? एक्चुअली नेक्स्ट स्लैब अराउंड 2.5 lakhs हर स्लैब का रहता है, तो नेक्स्ट स्लैब का आई थिंक आई हैव इन माई म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल. बट उसके बाद अगर वो स्लैब तक मैं उतना अमाउंट सेव कर लेता हूँ या हो जाता है, तो फिर नहीं लूँगा, नहीं तो लेना पड़ेगा लोन. ठीक है. और ये कितने साल का लोन है? 30 years. फर्स्टली जब भी घर खरीद रहे हो, ठीक है, घर का लोन लेते हो, तो 30 years इज अ लॉट ऑफ टाइम. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? यू आर जस्ट 24 years old एंड यू कैन नॉट बाइंड योर सेल्फ फॉर 30 years. लोन में 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट्स, टेन्योर, अमाउंट. इंटरेस्ट रेट्स will not matter as much if the tenure is low. बट आपके केस में 30 साल का टेन्योर है, तो even without asking you the interest rates, I can tell you कि आप एटलीस्ट ट्रिपल तो अमाउंट पे करोगे ही करोगे. कितना इंटरेस्ट रेट है आपका? 8.75. 8.75. टोटल अमाउंट पेएबल कितना होगा? वो कैलकुलेट मतलब एग्जैक्ट किया था मैंने, बट अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, बट अराउंड 3 times रहेगा. बिकॉज इट्स अ 30-year लोन, द टोटल पेएबल विल बी 58.05 lakhs. ऑलमोस्ट ट्रिपल, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर 30 years, राइट? EMI कम है, माना आपने बोला, राइट, कि EMI मेरा रेंट का पे कर देगा, बट एक्चुअल EMI आपका होना चाहिए था 15 या 20 साल के लिए, राइट? सो 20 years के केस में आपका EMI होता 18,000. आर यू गेटिंग इट? 18,000 आपका EMI है. 2,000 अगर आप एक्स्ट्रा पे कर दोगे तो आपका टोटल पेएबल हो जाएगा 43.4 lakhs. सो 58 lakhs से 43.4 lakhs वो हो रहा है. डज इट मेक सेंस? एक्चुअली लाइक माई प्लान वॉज टू, जैसे ही सैलरी बढ़ेगी या होगा तो आई विल स्टार्ट पेइंग एक्स्ट्रा EMIs. इंटेंट तो आपका सही था, बट स्टिल यू बॉट समथिंग विच यू कुडंट अफोर्ड. Yeah, right. The good part is because you are staying with your family and you don't have any responsibilities, you can do it. तो कोई लोड नहीं है. बट आगे जाके जब भी घर खरीदोगे, less than 30% should be allocated towards your home loan EMI, 20% should be the down payment, and the third part is 15 to 20 years max. तो आपने एक चीज़ बताओ, आपके अभी कोई खर्चे नहीं है, राइट? 1,000 rupees आपका ट्रैवल है, बाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? Why did you end up taking a 30-year loan? So my aim was to
keep my EMI minimum, and when I will be eligible to pay, I'll pay it प्रीपे इट, यू विल प्रीपे prepaid. इट, ओके ठीक है. पर एक चीज़ है, वाइल taking the loan, did you check with the bank about the prepayment charges and period before which you will attract a penalty for prepaying? Because see, it is in the best interest of the banks for you to continue your loan till 30 years. Right. क्योंकि वो लोग का interest, the total amount payable will be higher, Yes. right? So did you ask this? Not currently, but I'll do for sure. First thing, you have to go to the bank's POC and ask this question कि प्रीपेमेंट चार्जेस क्या है. अगर मैं 2 एक्स्ट्रा EMI पे करूँ या 1 एक्स्ट्रा EMI पे करूँ तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा कि नहीं. एंड ये भी पूछना कि अगर मुझे 5 साल के अंदर अंदर पूरा लोन ख़त्म करना है तो मुझे कुछ 1% या 2% कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं देना पड़ेगा. ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछने की ज़रूरत है. आप लोगों को ये पूछने की ज़रूरत है. व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ लोन, you should always keep the option open of you paying the entire amount in the first 5, 7 or 10 years. Why? अगर कुछ मेहनत कर लिया आपने और अगर आपकी इनकम बहुत बढ़ गई and if you are able to pay it, then why not? But बहुत सारे बैंक्स उसमें एक परसेंटेज पेनल्टी टाइप लेते हैं, प्री पेमेंट पेनल्टी. तो ये सारे क्लॉजेस आपको देखने ही पड़ेंगे, ठीक है. तो अभी लेट्स डू एन एनालिसिस ऑफ योर एक्सपेंसेस, राइट. 1000 travel, 15,500 or 15,000 in home loan EMI. Apart from that, what are you doing with your money? I'll start my mutual fund again, which I've stopped from last 2-3 months. So that is the plan. तो ये जो आपने म्यूचुअल फंड्स जो आपने बेचे थे, ये कितने टाइम से इन्वेस्ट कर रहे थे? इन्वेस्ट में 1.5 year से कर रहा था. सो एक चीज़ है कि आपने जैसे बोला ना कि मैं वापस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा. द चैलेंज इज इफ़ यू विड्रॉ योर म्यूचुअल फंड्स विद इन 1 year ऑफ इन्वेस्टिंग, देन यू आर अट्रैक्टिंग मल्टीपल चार्ज. सबसे पहला चार्ज ये कि 1% ऑफ द टोटल अमाउंट दैट यू आर विड्रॉइंग इज टेकन एज अ पेनल्टी नोन एज एग्जिट लोड. ओके. तो अगर आप 1 लाख रुपए निकाल रहे हो, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, लेट्स से आपने HDFC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, HDFC म्यूचुअल फंड वाले 1,000 रुपये काट देंगे, 1% पेनल्टी है. दूसरी चीज़, जो भी आपके प्रॉफिट बनेंगे उसका 15% टैक्स लगेगा. बट अगर वही चीज़ 1 साल से ज़्यादा आप होल्ड करते हो तो आपको 10% ही टैक्स देना पड़ेगा. एंड मोर देन दैट, द फर्स्ट 1 लाख प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर does not attract any taxes. Okay. So if you sell your equity mutual funds within the first year, आप extra charges दे रहे हो, exit in the form of exit load and the short term capital gains taxes. Okay. In your case where you are not investing a very significant amount, 1 लाख रुपए का profit 1 साल में नहीं बनने वाला, तो आपका LTCG कुछ भी नहीं होगा. That's why I am saying that अभी if you think that you will have more expenses in the near future, then do not invest in equity mutual funds, क्योंकि आपको वैसे भी वो चीज़ निकालनी ही पड़ेगी, राइट. लाइक यू सेड कि मुझे ये नेक्स्ट फेज का पैसा निकालना है, उसके बाद घर के और भी कुछ पेमेंट करना है, तो फिर इट डज नॉट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन equity म्यूचुअल फंड्स. पुट इट इन अनदर बैंक अकाउंट, आपको 3-4% रिटर्न दे देगा. या फिर आप कोई फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट में डाल दो. फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट में ये होता है, यू कैन विड्रॉ योर मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड अ लॉट ऑफ दीज फिक्स डिपॉजिट्स डू नॉट हैव एनी पेनल्टीज फॉर प्री विड्रॉल. अब ये चीज़ बताओ, आप 24 years के हो, have you ever thought of financial goals? Because you have been watching our videos since a long time, right? Do you have any goals which we can help create? If you ask me, then I'll give a number, that number I have to build before getting retired. That would be around 10 CR or something. Okay, but you're 24. Why are you thinking of retiring at this age? At least like finance, your ultimate goal is to like retire only, right? So why not start early? That's why. It makes sense. It makes sense that as retirement, right, is the amount is dangerous. It's humongous. But the best part is if you start early, the monthly contribution is on the lower side. But having said that, it is not the ultimate goal. Yeah. Before retiring, there have been many milestones and goals which need a lot of financial planning. Children education is one goal. Buying a home where you want to live is another goal. Buying a car is a goal. So I would suggest that since you are privileged enough to not have any responsibilities and living with your parents, you should think of your goals, and you have to think of goals like this. I want to buy a home worth 1 crore in the next 10 years. That's one goal. ये आपके सारे चीज़ें डिफाइंड है. अमाउंट
ड्यूरेशन और रीज़न। ये अब एक गोल हो गया, फिर ये गोल में आप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको मंथली इतना इन्वेस्ट करना है। So basically, how do we set that goals? Like for example, you said that मुझे 1 करोड़ का घर चाहिए 10 साल में. How do you know that वो 1 करोड़ का घर 10 साल बाद भी 1 करोड़ रहेगा, या फिर कैसे? How do you decide that amount? गुड क्वेश्चन। जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है राइट, उसका आपको ये देखना है कि लास्ट 10 सालों में ऑन एन एवरेज कितना ग्रो हुआ है। आई फील लास्ट 10 ईयर्स में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का प्राइसेस कुछ 8 या 9% से ग्रो हुआ है। आई माइट बी रॉन्ग। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि लेट्स से ये वाला घर आपको पसंद है, ठीक है, इस घर का प्राइस करंटली 1 करोड़ है। आपको पता है कि ऐसा टाइप का एक घर ऐसी लोकेलिटी में मुझे अगले 15 साल में खरीदना है, तो आपको बेसिकली जो टाइप का घर चाहिए उसे ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। The formula for this is known as future value. So the formula is present value multiplied by 1 plus growth rate raised to the power number of years. Okay. ये हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड है, ठीक है। आपको जल्द से जल्द क्वेश्चंस के आंसर देने, ठीक है। इफ मनी वाज आउट ऑफ कंसिडरेशन, व्हाट वुड यू डू फॉर अ लिविंग? I'll travel the whole world. If you had an option to choose between a 10% increase in your pay or a 10% reduction in your working hours, 10% increase in my pay. That's the right answer. At our age 10% increase in pay, क्योंकि अभी एनर्जी है और हेल्थ है कि हम ज़्यादा काम कर सके। एक पॉइंट के बाद शायद वो एनर्जी रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हैड एन अनलिमिटेड बजट टू गिव समथिंग टू योर पेरेंट्स, व्हाट वुड इट बी? घर नहीं, घर के अलावा कुछ। Luxury car. एनी कार इन माइंड? Mercedes. Mercedes, ठीक है। इफ़ यू हैड टू चूज बिटवीन अ लग्जूरियस हाउस और वन लग्जूरियस वेकेशन एवरी क्वार्टर, what would it be? One luxurious house. One luxurious house. One last question. You are 24 right now. What are 1 or 2 big professional goals that you want to achieve in the next 2 years? I want to complete this certification and do my masters in cybersecurity and achieve my goal to Upskill myself. Upskill and progress at a faster rate in your career. That's perfect. That's about it, guys. Thank you so much for doing this. मजा आया करके. All the best. I'm sure that I hope that you upskill yourself, consistently learn so that you can excel in this growing industry. That's about it, guys. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, do hit the like button. If you're new to the channel, consider subscribing. Please, everyone, subscribe करो। अगर आप वीडियोस देख रहे हो और अगर आपको पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब कर लो यार, एक ही बटन दबाना है, ठीक है। Goodbye and see you guys in the next one.